ساتھ ہوتے ہیں. میں اس میں کچھ آپ کو بتا دوں. ٹرانسجنڈر جس طرح آپ نے کہا اس طرح اور کچھ اور بھی سیگمنٹس ہیں جن کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں, لیکن ہر سال ہماری جو تھیم ہوتی ہے اس میں ہم وہ والے سیگمنٹس لیتے ہیں جو بیسکلی جن کو ہم پہلے اس طرح کی بہتر سروسز پرووائڈ کرنے سے محروم رہے ہیں یا جن کو معاشرے میں اس لیول پر کہہ لیں کہ اہمیت نہیں دی جا سکی پچھلے کچھ ٹائم میں ہسٹوریکلی. تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایجنڈا جو ہے بیسکلی ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے لیول پر بیسکلی گورنر اسٹیٹ بینک کے تھرو بیسکلی اپروو ہوتا ہے, اور اس میں ہم نے خواتین کو, اسٹوڈنٹس کو اور PWDs کو ہم نے جو رکھا ہوا ہے یہ اس سال کا ہے تھیم. اس نیکسٹ ایئر ہمارا اوبیسلی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اور ٹرانسجنڈرز کی جہاں تک آپ نے بات کی, نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام کے انڈر ہم نے بیسکلی یہ ایجنڈا ان کے ساتھ آلریڈی شیئر کیا ہوا اور وہ ہمارے بیسکلی آڈینس کا پارٹ رہے. رہی بات آپ کے ساتھ اویئرنیس سیشن کرانے کی, تو امجد لاشاری صاحب کے ساتھ بھی میری کوآرڈینیشن ہے, اور آنے والے ٹائم وقت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ 2 ویکس کے اندر ہی کہ ہم آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو موجود SMEs ہیں اسپیشلی جو پوٹینشیل رکھتے ہیں اپنا کاروبار کرنے کا, اور ان کو جو مسئلہ آ رہا ہے وہ صرف فائنینسنگ کا آ رہا ہے, ہم ایسے اسپیشل لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. آپ کے ساتھ ایک یہاں پر سیشن کروائیں گے اپنے پاس ہیڈ آفس جو کوئٹہ میں ہے ہمارا آفس اسٹیٹ بینک کا, وہاں پر سیشن کروائیں گے, اور کمرشل بینکس کے جتنے فوکل پرسن ہیں ہم اس میں ان کو انکلوڈ کریں گے سو دیٹ کہ جو آپ کے سوال ہیں ڈائریکٹلی بینک اس کا رپلائی کر سکے اور آپ تک انفارمیشن پہنچ سکے. میں جو خاص مخصوص ڈسیبل کے لیے جو کریڈٹ گارنٹی اسکیم ہے فار اسپیشل پرسنز, CGS SP کے نام سے میڈم کو شاید اس کا علم ہوگا, اس میں ان کے لیے اسپیشل 5% پہ فائنینسنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا پالیسی ریٹ اس وقت کیا چل رہا ہے, اراؤنڈ 12% ہے. تو اس پہ آپ کو جو اسپیشل ڈسیبل کے لیے ہے PWDs کے لیے وہ 5% پہ فائنینسنگ کی جائے گی. آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہمارے پاس ڈسیبل آپ کے مینڈیٹ ہمارا ہے, ہم ان چیزوں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اویئر کریں گے کہ چیزوں میں بھی آپ کو یہ فیسلٹی چاہیے, ڈسکاؤنٹ پرووائڈ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتا دوں, اس میں نا ہمارا ایک فائنینشیل لٹریسی ویک ہم منا رہے ہیں, جو بیسکلی آج جو سیشن کرایا جا رہا ہے یہ اسی کے تسلسل سے جو ہم فائنینشیل لٹریسی ویک منا رہے ہیں اس میں ہمارا ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی میں PWDs بھی ہے. صرف 2 ہم نے ان کو آڈینس کو ٹارگیٹ کیا ہے, جس میں ہمارے پاس سیگمنٹس ہیں جو ہمارے پاس ایک فیمیل ہے اور ایک PWDs ہے. ابھی آپ کے کچھ PWDs کے اسپیشل اسکول کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تھے, وہاں پہ ہم نے ان کو سیشن کرایا, اور یہ جو انوگریشن سرمنی تھی اس میں بھی ہم نے کرایا. اور جو آپ کا سوال ہے ریگارڈنگ اویئرنیس اباؤٹ دی فائنینشیل اسکیمس جو اسپیشلی ڈسیبل لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے, تو سر اس سے پہلے بھی ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں ہم لوگوں نے آئے تھے, وزٹ کیا تھا, اس میں بھی ہم نے بتایا تھا. اس کے علاوہ ابھی میں ہمارے محمد علی صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر یہاں پہ اسٹیٹ بینک میں, سر سے بھی آتے ہوئے چیف صاحب سے ابھی بیٹھ کے آپ لوگ کی وہاں پہ پرنسپل بھی آئی ہوئی تھی, سر کا نام میں کیا نام, بے نظیر سعید میڈم, وہ آئی ہوئی تھی, ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی وہی بات ہوئی ہماری. تو اس میں ہم لوگوں نے یہ کہا ان کو کہ ہم وزٹ بھی کریں گے, اسپیشل بینکس کو لے کر آئیں گے, اس کی انفارمیشن اسپیشلی جو میں آپ کو فائنینسنگ اسکیمز بتا رہا ہوں کاروبار کے لیے جو 5% پہ فائنینسنگ کی جا رہی ہے اسپیشل پرسنس کے لیے, اس کے بارے میں اویئرنیس دینا, وہ سارا ہم اس میں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی جو اسٹاف ہے ان کے ساتھ ہم ان کو یہ میسج دیں. فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں وینیو پرووائڈ کیا. یہ سب سے بڑا سردرد ہمارے لیے رہتا ہے کہ وینیو نہیں ہوتا, آڈینس ہوتی ہے وینیو نہیں ہوتا. تو سر سب سے پہلے تو اس کے لیے شکریہ. دوسرا یہ کہ الحبیب کی طرف سے جو ہے ہم آئے ہیں آج اس انیشیٹو کے لیے کہ ہم جو ہے آپ کے جو بھی آڈینسز ہیں ان کو معاشی طور پر خواندہ کر سکے. جس طرح ایک تعلیمی خواندگی ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر بھی یہ لوگ خواندہ ہو تاکہ جب اگلی دفعہ یہ بینک جائیں تو گھبرائے نہیں بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ جائیں اور ویل انفارمڈ ہو کر جائیں. ان کو اپنے رائٹس پتہ ہو. جب ان کو اپنے حقوق کی آگاہی ہوگی تو یہ ایک بہتر شہری بھی بن سکتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے بہتر طور پہ آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. ان کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. تو وہی بات ہو رہی تھی آپ کے فورم کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ SME کے حوالے سے, قرضہ جات کے حوالے سے بھی ہم نے ان کو جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے کہ جو اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا آلریڈی جو کھڑے ہیں اور مزید اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس حوالے سے ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ کھولنے میں معاونت کیسے کی جا سکتی ہے. تو سر یہ ایک چھوٹا سا ہمارا سیشن تھا اور اسٹیٹ بینک کے بغیر یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا. تو ان کے لیے بھی بہت ساری داد کہ انہوں نے جو ہے یہ انیشیٹو اٹھایا اور ہمیں جو ہے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ, معتبر لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروایا, اور ایک جو برج کا کام ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کیا.
तो आई एम वेरी ग्लैड on the behalf of Bank Al Habib, I would like to thank the two of you stakeholders. You are welcome. क्या दे रही हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं आप लोग, हमारे PWDs के लिए क्या कर रहे हैं, बैंक क्या कर रही है? जी बिल्कुल सर PWDs जो है पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़ आई वुड से कि इनके लिए सबसे पहला इनिशिएटिव तो ये है कि बैंक अकाउंट खोलने में इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो हमारे पास ये था कि बहुत सारे जो PWDs है वो फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक वगैरह नहीं कर सकते। तो हमने उनको बताया कि फ़ोटो अकाउंट की फैसिलिटी मौजूद है, जॉइंट अकाउंट की फैसिलिटी भी मौजूद है, तो ये दोनों फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आया एक्सेसिबिलिटीज़ का कि अगर हम बैंक तक ना जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक मुश्किल होती है वो मूवमेंट में या मोबिलिटी में होती है। तो हमने इनको ये यकीन दिलाया है, बल्कि हमारे जो बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनके साथ कनेक्ट भी करवाया है कि अगर बैंक में आप नहीं आ सकते, बैंक आपके पास खुद आएगा चलकर। तो हम बैंक जो है खुद रिप्रेजेंटेटिव आपके पास बिल्कुल होगी सर, मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल स्मार्ट बैंकिंग के हवाले से, डिजिटल ऐप के हवाले से इनको बताया गया, और ट्रांजैक्शंस कैसे की जा सकती है, ये अपने बिल वगैरह कैसे जमा करा सकते हैं, डिजिटाइज कैसे हो सकते हैं, और इसी तरह जो है अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसमें फिर ये डिजिटल बैंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या क्या इनकी सजेशंस हैं जो इनसे हम की टेकअवेज लेकर जा रहे हैं, जो हम अपने प्रिंसिपल ऑफिसेज में जो है बताएंगे वो भी है। और इसके अलावा सर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो इनके जहनों में सवालात थे कि क्या इनके लिए कोई हिस्सा मौजूद है या नहीं, तो वो भी हमने इनको बताया कि किस तरह से बैंक में जो है एक जो डिसेबल बंदा है, या डिसेबल तो मैं खैर नहीं कहूँगी, डिफरेंटली एबल बंदा जो है वो किस तरीके से जो है बैंक में एम्प्लॉयमेंट जो है वो हासिल कर सकता है। तो ये सारी मालूमात हमने इनको फराहम की। फिर भी इनके सवालात जो भी रहते हैं वो सर ने भी इनको क्लैरिटी दी, सर ने भी क्लैरिटी दी, और आगे भी हम करते रहेंगे सेशन। यहाँ पे मैं डीजी साहब को पहले थैंक्स कहता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया। फिर आप जो है सर एक छोटे से आपके ज़रिए मैंने इनके कोर्ट पे जो है गेंद फेंकना है। हाँ डीजी साहब की तरफ से मैं ये एक रिक्वेस्ट करता सर, मुलाजमत मैं उसकी मुलाजमत वो मैं वजाहत करता हूँ। हमारा PWDs एक्ट है 2017, उसके तहत 5% कोटा फिक्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट जितनी भी होंगी, उनके रिक्रूटमेंट्स जितनी भी होंगी, उसमें 5% लाजमी है कि वो हमारे PWDs का हक है, हम उन्हीं को देंगे। वो जो एलिजिबल होगा उसको 5% कोटा। बिल्कुल। दूसरी एक मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि हमारी जो बैंक्स हैं वो CSR की मद में हमारे PWDs को क्या दे रही हैं, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी ना, अवेयरनेस दी है आप लोगों ने। आप काइंडली मुझे बताएं कि स्टेट बैंक के रेप भी हैं और अल हबीब के रेप भी हैं, आप हमें बताएं कि CSR की मद में आप PWDs को क्या फैसिलिटीज़ दें। सर मैं इस वक्त इस पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं कोई भी जो है इस तरह की कोई बात कर सकूँ, बट मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि गिव मी अ फ़िश आई ईट फॉर अ डे, टीच मी अ फ़िश आई ईट फॉर लाइफ टाइम। तो हम इनको स्किल्स दे रहे हैं जो इनके साथ लाइफ टाइम रहेगा। हम इनको जो है ज़हनी तौर पर जो है वो बाएतमाद के साथ साथ ज़हनी तौर पर जो है अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, ताकि ये किसी और की तरफ देखे नहीं। तो वो जो स्किल बिल्डिंग या स्किल डेवलपमेंट जो है, मैं यहाँ पे इस फोरम पे ये कहना चाहूँगी कि अगर ये बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं और ये प्रपोज़ल नहीं बना सकते, मैं इनको प्रपोज़ल बना कर दूँगी, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इनको बना कर देंगे। अगर इनको जो है जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि अपने आप को रजिस्टर करवाना है, NTN नंबर है, जो भी है, उनकी मुआवनत भी हम इनके लिए करेंगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स रैकेट। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम इनको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सर बाकी जो आपकी जो एक रिक्वेस्ट है मैं अपनी अथॉरिटीज़ तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। हो सकता है कोई ऐसी पॉलिसी हो। जी मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि CSR वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल है, और बैंक्स के पास मौजूद हैं ये फंड्स, बीइंग ऑन योर साइड डायरेक्टली, ठीक है। मैं आपको फेस पे बता रहा हूँ, ये कमर्शियल बैंक्स के सामने बता रहा हूँ कि आई एम ऑन योर साइड, ठीक है, आई एम प्लेइंग फ्रॉम योर साइड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं क्या करूँगा, मैं आपके साथ कमर्शियल बैंक्स के जितने भी रीजनल मैनेजमेंट इसमें GMs है, जो हेड्स हैं, मैं आप उनके साथ मीटिंग रख लेता हूँ। हमारे चीफ साहब हैं अलाउद्दीन जगदीश साहब, आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। ही इज़ लाइक अभी जब मैं आउट कराया हूँ थोड़ा सा लेट हुआ, उसकी वजह ये थी कि हमारा ऑफिस में सेशन था, उसमें PWDs के सारे बच्चे, यही आपकी जो क्या नाम है सईदा सर, उनके साथ वो सारे बच्चे हमारे साथ स्टेट बैंक के एक्सपोजर विजिट करते हैं।
तो उनके साथ हमारा बड़ा डिटेल सेशन रहा। उनके साथ यही बात करते उन्होंने बोला भाई किसी लेवल पर मेरी उसकी ज़रूरत है, ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत है, या आवाज़ उठाने की, या बैंकों को बुला कर एक जगह पर बिठाने की और उस पर इंश्योर कराने की कि वो काम कर रहे हैं, मैं हाजिर हूँ। तो सर मैं इस फोरम की तवज्जुह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे हम टाइम लेंगे। वैशाली साहब के साथ भी हमारा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी है, अब्दुल साहब के साथ ही इज़ बीन वेरी हेल्पफुल, हमारे साथ बड़ा उन्होंने पास्ट में काम किया। तो हम आपको बुलाएंगे सर, कमर्शियल बैंक के हेड्स के साथ बिठाएंगे और जिसको बोलते हैं ना सर बिल्कुल सामने सर Call the angel is here. एंजल कहेंगे, वैशाली साहब मारेंगे सर आपको। तो हम बैठ जाते हैं सर, कमर्शियल बैंक के सारे बड़ों को बिठाते हैं जिन्होंने डिसीजन लेना, और ये कम से कम जिन्होंने आगे अपनी हेड ऑफिस से बात करनी है। अब होता क्या है, जो 5% की आप बात कर रहे हैं, माजरत के साथ अभी सारे सुन रहे हैं, हमारे भाई हैं, कोई हकीकत की आगाही है, 5% पूरा हो रहा है CSR, पंजाब में हो रहा है, AP में हो रहा है, सिंध में। वो बलूचिस्तान का 5% नहीं होता सर, वो उसके टोटल प्रॉफिट्स का 5% होता है। उसने 1 अरब रुपए कमाया, उसमें से 5% उसने 5 करोड़ से उसने CSR में रखा। वो 5 करोड़ KP में लगाए, बलूचिस्तान में लगाए, पंजाब में लगाए, सिंध में लगाए, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। स्टेट बैंक उसको ये नहीं कहेगा कि अच्छा तुमने, क्योंकि उसके प्रॉफिट्स सेंट्रलाइज हैं, वो ये नहीं कहता कि मैंने बलूचिस्तान से कितने पैसे कमाए, वो ये कहता है मैंने पाकिस्तान से कितने पैसे कमाए। लाइट बैंक हो, अरबी बैंक हो, कोई वो क्या कहता है मैंने 1 अरब रुपये कमाया, इतने करोड़ बने, ये मैंने पंजाब में स्कूल खोल लिया, इतने करोड़ का वाटर प्लांट लगा कर दिया, इतने करोड़ कोई वो कर लिया, स्टडी मटीरियल दिया। सो माई पॉइंट इज़ कि जब हम इस फोरम पर यहाँ पर एक वॉइस रेज करेंगे, ये आवाज़ आगे हेड ऑफिस तक जाएगी और फॉलो अप करना हमारा काम है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फॉलो अप हम करेंगे। इनकी तरफ से रिकमेंडेशन जाएगी, सर एक बहुत प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से कोई कंक्रीट फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऐसा इस किस्म का अभी तक किसी एक डिपार्टमेंट में किसी कमर्शियल बैंक से शेयर किया। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सोशल वेलफेयर। हम क्या करेंगे, प्रपोजल बनाते हैं। आज मेरे से बात हो रही थी, तो वो क्या कहते हैं कि बच्चों के पास मटेरियल था जो डेफ एंड डम, ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, हमारे पास बजट नहीं है। वो जो CSR का बजट है, हम उसको राउट कैसे करेंगे, उसको राउट करने का तरीका कि हमारी तरफ से प्रपोजल जाए, उस प्रपोजल को फॉलो अप रखना मेरा काम है स्टेट में, ठीक है, वो मैं पर्सनली आपके साथ, क्योंकि मेरा आपके साथ ताल्लुक, मैं फॉलो अप रखूँ, ठीक है, वो वहाँ से अप्रूवल होता है, कट लगता है, कुछ आता है, एक कुछ होता है ना, पहली बारिश की पहली बूंद तो साबित होगी ना, और फिर वो रास्ता हम सबको दिखाएंगे। हर बैंक के साथ ताल्लुक बना सकते हैं। जालाबारी की तो बूंद नहीं सर, हम स्टार्ट तो पहली बूंद से होगा ना, जालाबारी हो, तूफान तो नहीं लाना सर। देखिए, किसी को अगर पता नहीं था जी, मेरे जो दोस्त हैं समीउल्लाह भाई और आपके सारे साथी, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आज जो हम ये बात कर रहे हैं, पहली बात ये है कि मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने डिपार्टमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये डिपार्टमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हॉल, हम सारे के सारे ये PWDs के, ये सारा आप लोगों का, और सब हम एक ही टीम है। तो आप सब आए, मोस्ट वेलकम, फिर आइएगा, बार बार आएँ। लेकिन ये CSR की जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे PWDs के लिए। हम समझते हैं, बल्कि हम बिलीव करते हैं कि हमारे जो PWDs हैं किसी से कम नहीं है सलाहियत के लिहाज से। सिर्फ एक बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ किसी को मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती। अगर हम अपने इन PWDs को अपॉर्चुनिटीज़ दें, मैं समझता हूँ ये मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और वो जो CSR वाली बात है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, तमाम कमर्शियल बैंक्स को बुलाएं, जब मुझे कहें मैं हाज़िर हूँ, कल कहें, परसों कहें, छुट्टी के दिन कहें, मैं हाज़िर हूँ, लेकिन कुछ दें, हमारे PWDs को हेल्प आउट करें, इंफॉर्मेशन दें, अवेयरनेस दें, वो भी अच्छी बात है। इल्म के बाद कुछ न कुछ फाइनेंशियल एड मिलेगा, और वो हक है, क्योंकि ये कंपोजिट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मद में जितने भी पैसे होते हैं वो खर्च ऐसी जगहों पे किए जाते हैं कि ताकि हम सोसाइटी को आगे लाएं, उसकी वेलफेयर के, और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वेलफेयर के हकदार जो हैं हमारे PWD हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबके आने सर। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ सर, और ये आपकी बात की कंटिन्यूशन में बताऊँ कि जहाँ पर बात है CSR की, वहाँ पर एक और एस्पेक्ट भी है सर, कि हमारे वो हजरात जो फाइनेंसिंग की लिमिटेशन की वजह से कारोबार नहीं कर पाते, स्टेट बैंक ने एक स्पेशल स्कीम निकाली है,
वो PWD स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम है और स्पेशल पर्सन के लिए, और उसका मकसद क्या है, इस वक्त अगर आप कमर्शियल रेट पर किसी भी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो 20% से कम, हालांकि स्टेट बैंक का रेट 12% है, उसके ऊपर काइबोर 16% चल रहा है, कमर्शियल बैंक आपको 20% पे लोन देगा नॉर्मल किसी भी दुकान खोलने के लिए अलग से, ठीक है। हम फ्रॉम स्टेट बैंक हमारी तरफ से एक पॉलिसी इशू हुई है सारे कमर्शियल बैंक्स को जो उन्होंने फॉलो करनी है, और वो बाउंड है इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर रखेंगे, लेकिन इस परसेंटेज जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 5%, कहाँ पर 20% पे लोन मिल रहा है, यानी कि 100 रुपये में अगर कमाता हूँ तो मुझको उसको मैं 20 रुपये बैंक से शेयर करनी है, और कहाँ पर 5%। तो ये वो स्टेट बैंक की तरफ से वो है, ठीक है, एक स्टेप है ताकि हम सिर्फ इनको फैसिलिटेट कर सकें इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको आपने कहा कि अभी इक्वालिटी की नहीं इक्विटी की ज़रूरत है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो 5% पर सर, कोई मैं भी गुजारिश करना चाहता हूँ डीजी साहब की मौजूदगी में सिर्फ दो तीन अल्फाज। सर, गुजारिश ये कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो एक पॉलिसी बनाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। हमारी ये सजेशन होगी कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं, ख़ास तौर पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के हवाले से, तो उनकी मशावरत से जब आप बनाएंगे पॉलिसी तो फिर वो सस्टेनेबल होगी आपकी पॉलिसी। उसको जो है अगर उनकी मशावरत उसके अंदर शामिल नहीं होगी, आप ख़ुद पॉलिसी बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कार लोन लेना चाहता हूँ, लेकिन एक आम आदमी भी लेना चाहता है, मुझे उसमें कोई डिस्काउंट नहीं, तो इस तरह की डिस्काउंट्स वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए। या फिर हमारी जो डिवाइसेस हैं वो बहुत महंगी डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करना चाहते हैं लेकिन हम लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते, तो वो अगर हमें डिस्काउंट पे मिल जाए तो हम लोग उसको आसानी से वो कर। और आखिरी बात ये कि जैसे अभी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड है, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप जॉइंट अकाउंट खोलें, आप इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खोल सकते। तो अगर आप लोगों की तरफ से जो है वो पॉलिसी में ये चीज़ हमें रिलैक्स की जाए कि जो भी ब्लाइंड है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर जो है वो अकाउंट खोल सकता है, तो ये हमारे लिए आसानी होगी और हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो इजी तौर पर बैंक फाइनेंसिंग जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ सजेशन थी जो बात आप रखेंगे जब हम मीटिंग से मिलेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह सर ज़रूर। Thank you so much, sir. Hopefully थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जल्द से जल्द।